Good morning, everyone, and I welcome you all to this fourth the last session on general concerns and the spirit of hospitality. That is a part of capacity building program for kitchen and food production department. I hope that everyone is doing quite well now, and hospitalities have started getting back on its feet, and now people are back in their hotels and their kitchens, and hopefully we all will be doing very well in the future. And hope तो थर्ड कोरोना की बात हो रही है, थर्ड वेव की बात हो रही है, तो कभी ना आए और कोरोना खत्म हो जाए बिल्कुल. So hi, I am Nisha Mishra. Welcome you back again to this fourth session. I'm a lecturer for food production at FHRA IHM, Greater Noida, and with the aim to provide the quality manpower to the hospitality industry, FHRA has set up an institute of its own in Zone 5. Currently, the institute not only aims to nourish the budding talents in service sector, but also we are inclined to support the professionals in the industry, help them excel in their skills pertaining to their area of interest, and having this thought in our minds, our institute with all its with FHRA and all its regional associates have come up with this capacity building program to reiterate the basic skills that are needed to delight the guests and make their journey memorable. And with that, I would like you all. I would like to welcome you all to this program. And so the last session of the 4-session program. I hope we are here and we are inculcating some things in ourselves from this session. We are taking home some part of the session and helping ourselves to become a better hospitality player. As we start our session, I would like to start with linking backwards. The last week's session, we had discussed about the safety, food safety, hygiene concerns that are all related to food, including different healthy practices which we follow in kitchen. We also discussed about the preservation and different preservation techniques, from Asian to modern times. हमने बात की sun drying की, हमने बात की थी basic practices जो हम करते हैं, जो food preservation टाइप यूज करते हैं, class 1 preservatives to salt, sugar, vinegar सब हम बात करते हैं. Smoking की बात की थी, कैसे खाने को smoke करते हैं, sun drying. And class 2 preservatives are chemicals, benzoates, nitrates जो यूज करते हैं preservation में. Then we talked about all the good practices we follow in the kitchen, like hand wash later, thawing in refrigerator, reheating cooking temperatures. We talked about that. If anybody missed that session, किसी ने भी हमें से किसी ने वो last session miss किया होगा, तो go to FHRA IHM YouTube channel. You can go there. You can see the last week's recording. All the recordings pertaining to kitchen and interpersonal skills have been put on YouTube. You can go there, check the videos, and you can retrieve whatever you want from those videos. And now coming and starting with our today's session. Our general concerns first of all, a small talk about general concerns today, like the pandemic, the prolonged lockdown. This is a reality, harsh reality के pandemic के बीच में है, and there have been lockdowns कभी lockdown होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, like 2 बार हो चुका है ऐसे. This is actually affecting our industry. Despite the volatile market, हमने past में देखा है कि year on year we have witnessed a rise in travelers globally who aim to get the best hospitality services at the best of price. हमने पीछे देखा है, year on year देखा है कि travelers बढ़ते जाते हैं, travel industry बढ़ती है, और जो
बेस्ट ऑफ सर्विस इनको चाहिए गेस्ट को, वो भी बेस्ट ऑफ प्राइस पे चाहिए गेस्ट को सर्विस. एंड आफ्टर द पैंडेमिक we are very hopeful that again there will be a sudden rise in tourist movement across the globe. तो प्लीज हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बी सेफ. एंड पैंडेमिक खत्म हो रहा है, अभी कम हो रहा है, तो we will be back in our kitchen and hotel and keep ourselves safe and keeping the guests safe. People, the second point, the people with right skill and right job are not available. So 15 years back हम जब बात करते थे, 15 से 20 साल पुरानी बात करते हैं होटल इंडस्ट्री की, तो ये एक डायनामिक चेंज हुआ है. चेंजिंग डायनामिक्स इन द होटल एंड गेस्ट आल्सो. तो 15 हम जब बात करते हैं 15 से 20 साल पुरानी, तो हम 5 स्टार होटल देखते थे कि इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल टूरिस्ट, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, बिजनेस ट्रैवलर्स. बट नाउ जैसे ही हमारा इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है लोगों की, तो कोरोना से पहले हमने देखा है कि इन्होंने अपने आप में स्पेंडिंग शुरू की है. पीपल नाउ ट्राई टू मूव आउटसाइड देयर होम टाउन्स, दे ट्राई टू विजिट न्यू प्लेसेस. अगर मुझसे पूछा तो आई वांट टू गो टू गोवा, आई वांट टू गो टू पणजी, आई वांट टू गो टू केरल, आई वांट टू गो टू माउंटेन्स नाउ, एंड फॉर विद दैट वी टेक होटल्स. तो बहुत बड़ा अब सेगमेंट domestic travelers का हो गया 5 स्टार 4 स्टार hotels. But that there has been a shift from international tourists to domestic tourists. और बहुत बड़ा clientele हमारा बन गया domestic tourism. तो उसी के साथ डायनेमिक्स बहुत सारी चेंज हो रही है. इंटरनेशनल टूरिस्ट की कुछ डिमांड अलग होती है, डोमेस्टिक टूरिज्म की कुछ अलग डिमांड होती है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो. पीपल विद राइट स्किल हम बात करते हैं, तो कई बार हम जब हम बात करते हैं राइट स्किल्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, तो बहुत लोग पूछते हैं कि हमें इसमें घुसने के लिए क्या हमारी स्किल चाहिए, हॉस्पिटैलिटी में घुसने के लिए, होटल्स में घुसने के लिए क्या स्किल चाहिए. तो बेसिकली मेरे पास बताने के लिए यही होता है कि वी नीड 3 डिफरेंट स्किल्स, नॉट 3 डिफरेंट स्किल्स बट 3 थिंग्स वी नीड टू गेट एक्सेल इन द इंडस्ट्री. दैट इज एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल. So attitude is something जो बिहेवियर में आता है आपके, एक आपका जो एक नजरिया होता है बदल जाता है, आपका बिहेवियर में चेंज आता है. और वो एटीट्यूड बहुत बढ़िया चीज होती है जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं. तो जब हमारा पूरा ध्यान गेस्ट सेटिस्फैक्शन में होता है, हम जो भी हमारे स्टेप्स हम आगे बढ़ाते हैं वो हॉस्पिटैलिटी के लिए होते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए होते हैं. दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी काम को करने के लिए एटीट्यूड चाहिए सबसे पहले. If you have the right kind of attitude, we can conquer the whole world. Attitude is very important for a person to enter the industry. अब जब इंडस्ट्री एंटर करते हैं सही एटीट्यूड के साथ, you try to get admissions into hotel management colleges, और you join hotels. आप होटल ज्वाइन करते हैं, वहां पे आप नॉलेज गेन करते हैं. जरूरी नहीं कि नॉलेज सिर्फ आप कॉलेज में गेन कर सकते हैं. You can even gain knowledge from the hotels while working. हम अपने जूनियर स्टाफ से, सीनियर स्टाफ से पहले के नॉलेज गेन करते हैं. जैसे मिनेस्ट्रोन बनाना है, कैसे मिनेस्ट्रोनी बनाना है, उसमें क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, एक नॉलेज गेन की. कटिंग चॉपिंग कैसे करनी है, वो एक नॉलेज गेन की. कि ब्रेटोन क्या होता है, या फिर मैसेडोना क्या होता है, या फिर कितने टाइप के कट्स होते हैं, ये नॉलेज गेन किया हमने. उसके बाद हम वो नॉलेज को जब इम्प्लीमेंट करना कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, that becomes our skill. जब मिनेस्ट्रोनी का मैंने 3-4 बार बनाया, सही से बनाया, सही कंसंट्रेशन, सही इंग्रेडिएंट्स यूज किया, that becomes your skill. तो स्किलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री में, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल. इसके साथ साथ कभी कभार हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं. कम्युनिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. वी नीड टू कम्युनिकेट वेल विद द गेस्ट, विद आवर ओन कोवर्कर्स, एवरीबॉडी. तो ये सब चीजें हैं जो हमें चाहिए जो एक्सेल करने के लिए इंडस्ट्री में. नाउ कमिंग टू द स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी. जब हम स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है एटीट्यूड. तो मैंने अभी भी बात की एटीट्यूड के बारे में. एटीट्यूड एक्चुअली शेप्स योर बिहेवियर. एटीट्यूड शेप्स योर बिहेवियर. योर एटीट्यूड इज द स्पिरिट
स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बात करें तो जो स्पिरिट है दैट इज एक्चुअली द एटीट्यूड. तो स्पिरिट इज द की टू प्रोवाइड excellent service. जब excellent service बात करते हैं तो spirit and attitude is the basic key. It's the key to provide excellent service to the guest. Display that spirit of hospitality, which is an attitude or a commitment to provide the best service possible to the guest. तो जब spirit of hospitality की बात करते हैं तो that spirit of hospitality जो attitude बन जाता है, it is a commitment basically. ये हमारा कमिटमेंट है that we will be providing best service possible to the guest. So that is basically the spirit of hospitality. So today we will be talking about spirit of hospitality. अब जब spirit of hospitality की बात करते हैं तो we should always know what really guest wants from us. This is very important thing. तो guest जो needs हैं, जो wants हैं, उसको हमें मालूम हो चाहिए क्या कुछ चाहिए आज. तो attitude अच्छा है हमारे पास, हमारा attitude and behavior is good. We display spirit of hospitality in every job, but for that we need to know what exactly guest wants from us. What guest wants? अब मैं इसको 4 पॉइंट में मैंने कोशिश की है लाने की. Meet or exceed guest expectations. जब गेस्ट आते हैं होटल के अंदर आते हैं तो उनकी बेसिकली 4 चीजें दिमाग में रखते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस को होटल मीट करेगा या एक्सीड करेगा. डिलीवरी ऑफ क्वालिटी गेस्ट सर्विस. जब गेस्ट होटल में आता है तो वो सोच करते हैं कि हमें क्वालिटी गेस्ट सर्विस मिलेगी. थर्ड इज इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट द कंप्लेंट शुड बी हैंडल्ड इन अ वेरी प्रोफेशनल, इन अ वेरी गुड मैनर. फोर्थ इज इंप्रूविंग सर्विस क्वालिटी. अगर कुछ कंप्लेंट होती तो उसको इंप्रूव करके अगेन यू कैन कम बैक ऑन द ट्रैक. So this is 4 wants. This is 4 things which guests want whenever they are coming to the hotel. Increasing competition makes service an important element for success. आजकल हम देख भी रहे होंगे कि होटल्स जब थोड़े से कम चल रहे हैं तो बहुत सारे क्लाउड किचन ओपन हो गए हैं. रेस्टोरेंट्स, स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं धीरे-धीरे. अपने जो भी रेस्टोरेंट्स है वो अपने क्लाउड किचन चला रहे हैं या फिर डिलीवरी सिस्टम चला रहे हैं. तो जो कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो चुका है. तो आप में और सब में बाकी में एक डिफरेंस रहेगा, दैट इज सर्विस. इंक्रीजिंग कंपटीशन मेक्स सर्विस एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर सक्सेस. हम खाने को कैसे बना रहे हैं, किस तरह की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गेस्ट को. आजकल मैं देख रहा हूँ कि डिलीवरी सिस्टम में बहुत अच्छी चीजें आने लगी हैं. इवन दे आर गिविंग सैनिटाइजर्स, ऑल द पैकिंग मटेरियल का सही हो गया, अच्छा हो गया और क्वालिटी अच्छी हो गई है. जो कटलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस इज वेरी गुड नाउ. क्वालिटी सर्विस मींस मीटिंग एंड एक्सीडिंग गेस्ट एक्सपेक्टेशंस. वी डोंट एक्सपेक्ट कि जब खाना हमारे पास आ रहा है तो जब ऑर्डर डिलीवरी ऑर्डर ले रहे हैं तो उसमें क्रॉकरी में कटलरी भी आ रहा होगा. बट नाउ दे आर कमिंग, हैंड सैनिटाइजर आर कमिंग विद दैट. तो ये बहुत अच्छी चीज आ रही है. इवन travelers from outside country, they expect quality service, and at last, all the guests deserve respectful treatment. Respectful treatment के बाद हम बात में करेंगे, एजेंडा के बाद सेशन में बात करेंगे. जब हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं गेस्ट की, अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गेस्ट. जब गेस्ट आता है तो एक्सपेक्ट करता है फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द गेस्ट, ऑफ द होस्ट आल्सो. द होस्ट शुड बी फ्रेंडली. अब कोई दुश्मन तो नहीं है, तो वी शुड ऑलवेज बी फ्रेंडली. कर्टियस बिहेवियर, एम्पैथिक बिहेवियर, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए होस्ट की, जो सर्विस में होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टाफ के अंदर. एंड द पीपल हु आर द होस्ट, द होटेलियर्स हैं जो हम, वी शुड बी इन प्रोफेशनल अपीयरेंस. That is the guest expectation में देखा. हम बात करते हैं जब guest expectations की, तो होटल्स भी आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं ये expectations को exceed करने के लिए. हम कभी-कभार हम देखते हैं कि गेस्ट आजकल attractive personalized welcome kit provide करते हैं गेस्ट को. अब वेलकम किट, जो पर्सनलाइज्ड वेलकम किट है, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल होने लगा है. पर्सनलाइज्ड प्लैटर, चॉकलेट प्लैटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं.
these are very important elements now. बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं, बहुत खर्चा नहीं है, but they are actually मतलब एक गेस्ट के दिमाग में एक अच्छी छाप छोड़ता है होटल की. And this kind of appreciation is very important for a hotel. Word of mouth appreciation होता है जिसे बोलते हैं, जो गेस्ट अपने मुंह से अप्रिशिएट करता है होटल के बारे में, वो 2-4 लोग और बाहर बोलेगा, ऐसे एप्रिसिएशन बढ़ता है हमारा. तो हम जैसे गेस्ट के एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाके काम करते हैं, एप्रिसिएशन स्टार्ट्स. तो फ्रेंडलीनेस क्या है? Whenever we talk about friendliness now, तो जब गेस्ट होटल के अंदर आता है, फ्रेंडली एक शुरू होती है हमारे गेट से ही. हमारे दरबान साहब खड़े होते हैं, वो हाथ जोड़ के वेलकम करते हैं स्माइल के साथ. तो स्माइल इज एक्चुअली अ वेरी की एलिमेंट इन showing your friendliness to the guest. Greeting the guest cheerfully and promptly. Maintaining consistent eye contact. एक गेस्ट के साथ आप आई कांटेक्ट रखेंगे मतलब क्या, आप दिल से बोल रहे हैं, आप उनको चीयरफुली ग्रीट कर रहे हैं, मतलब आपको जो ग्रीटिंग है वो दिल से आ रहा है. इवन आप अपने साथियों को जब ग्रीट करते हैं किचन में जाकर या सर्विस में या फिर हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस में, जो आप को-वर्कर्स हैं उनको ग्रीट करते हैं, उनको तो एंथुसियास्टिकली ग्रीट करिए, जिससे कि आपका भी दिन अच्छा जाएगा, उनका भी दिन अच्छा जाएगा. आई वांट टू शेयर अ स्मॉल स्टडी यहाँ पर कि स्टडी वाज कंडक्टेड बाय अ लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड that accorded that around 75% of the guests which are coming in the hotel want the staff of the hotel to be more friendly now. अब friendly मतलब वो नहीं कि आप बिल्कुल friendly हो जाए, प्रोफेशनलिज्म खत्म कर दें. There should be a balance between professionalism and friendliness. Friendliness with professionalism चाहिए उनका. मतलब you can call the guest with by their first name. Hello, Mr. Raman. You can do that. Guest wants people be more friendly in nature now, क्योंकि आजकल गेस्ट बहुत ट्रैवल अकेले करते हैं, उनको ज्यादा फ्रेंडलीनेस चाहिए आजकल स्टाफ से भी. लाइक दिस हमारे पास ये ब्रिगेड है, अगर आप देखिए ऐसी कोई ब्रिगेड हमारे किचन में भी होती है, जो आप मुस्कुरा के किसी को विश करते हैं, अपने सहयोगियों को, अपने कोवर्कर्स को, आपका दिन भी अच्छा आता है, आपके कोवर्कर्स का दिन अच्छा आता है, अच्छी कोई टेंशन नहीं होती है किचन में भी. Courtesy is a very important point in our spirit of hospitality. Courtesy बहुत important part कैसे हो गया, क्योंकि आप होटल में हैं, with a host, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, and we have a very unique culture behavior. उस पे courtesy को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है. Giving guests and co-workers full and uninterrupted attention. आप guest से बात कर रहे हैं, try to give your uninterrupted attention. ऐसा नहीं कि हम यहाँ वहाँ देख के बात कर रहे हैं गेस्ट को, straight to eye contact. हमें पूरा अपने कान खुले रखने चाहिए और दिमाग खुला रखना चाहिए जब भी हम गेस्ट से बात कर रहे हो. Everybody needs respect, so give and take respect. हम गेस्ट को भी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने कोवर्कर्स को भी रिस्पेक्ट देंगे, जैसे कि जब हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी. Call guests and co-workers by their first name with salutations. Hello, Mr. Ram. Hello, Mr. Raman. Or even if you are talking to your chefs, your co-workers, hello, Chef Ram. Hello, Chef Raman. So you can, मतलब ये courtesy होती है जो हम follow करते हैं होटल में. This is part of spirit of hospitality. Then we have empathic behavior. जरूरी नहीं कि हर गेस्ट खुशी होटल आ रहा है. हो सकता है कि कोई दुखी भी हो, किसी घर में कोई दुर्घटना हो गई हो, होटल में रह रहे हो या फिर तो कुछ और काम करने आए हो, दुखी मन से आए हो, तो वी शुड बी वेरी एम्पैथिक टुवर्ड्स दोस गेस्ट. हमें उनकी तरफ बैठ सोचना चाहिए कि उनके घर में दुख हो रहा है, तो वी शुड बी एम्पैथिक नॉट ओनली फॉर गेस्ट, वी शुड बी एम्पैथिक टुवर्ड्स आवर co-workers feeling also. Responsiveness. We should be responsible. Take responsibility. We should be responsible enough that we can satisfy the guest needs. Even the co-workers' expectation को responsibly हम उसको fulfill करें. हमें जरूरी नहीं कि हम छोटी-छोटी बात के लिए मैनेजमेंट के पास जाएं, एग्जीक्यूटिव शेफ के पास जाएं. If we have, हमारे अंदर वो पावर है कि we can delight the guests on our own, so we should do that. We should take responsibility. We should lead our team.
and we should, जहाँ भी possibility बनती है, we should enact and we should do things which can help in satisfaction of the guests. Give them solutions. Try giving them solutions. If person asks for solution, give them solutions. तो ये सब चीजें हमें more responsible बनाती हैं and even a better hospitality than hotelier. Flexibility. आजकल chefs are not only confined to kitchens. They're coming out from the kitchen. They're talking to the guests. They're taking feedbacks. This is a very good quality now. मतलब हम भी देखते थे अपने टाइम में, we are going to the people around, हम बात करते हैं गेस्ट से, फीडबैक्स देते हैं खाने के बारे में, मॉर्निंग बुफे के बारे में फीडबैक्स, इवनिंग बुफे के बारे में फीडबैक्स, और कभी कभार हम गेस्ट से बात करते हैं कि आपको कैसा चाहिए, ये चाहिए, उनके बारे में पूछना. So we should be flexible enough to do that also, and this flexibility can create moments for the guest. ये एक मोमेंट क्रिएट करती है गेस्ट के लिए, गेस्ट खुश रहता है, तो मेरे को शेफ बात करके गए. So we should be flexible enough to do that also. Even we should be flexible for each and every co-worker. उन सबको ट्रीट करना चाहिए एज इंडिविजुअल. And last, we should always be in a professional attire. Professional attire मतलब professional appearance मतलब maintain a neat and professional, well-groomed uniform. वेल ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी, तो एक गेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है. एक अच्छा शेफ, साफ सुथरा शेफ होगा तो गेस्ट भी बात करेगा. एक गंदे अटायर में, गंदी यूनिफॉर्म में जो शेफ खड़ा होगा उससे शायद गेस्ट बात ना भी करे. तो मेंटेन अ नीट एंड प्रोफेशनल यूनिफॉर्म, wear a clear proper uniform. It's very important for a person who's working in a hotel. आजकल कोरोना टाइम में we should like, आजकल हमारा कम्युनिकेशन कम हो गया है, आपस में भी गेस्ट से भी कम्युनिकेशन हमारा बहुत कम हो गया है. तो वी शुड थिंक, ठीक कोरोना तो है, बट आफ्टर कोरोना वी शुड, वी आर ऑल पीपल, वी आर ऑल सोशल पीपल हु वांट टू वर्क, हु आर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहाँ पर लोग आपस में एक सोशल बॉन्ड बना के रहते हैं, या फिर बातचीत के बिना हमारा काम पूरा नहीं होता है. तो ये सब चीजें हैं जो हमें एक अच्छा होटलियर बना सकती है. Now coming to delivering quality guest service. Delivering quality guest service. Whenever we are talking about guest service, determine what guest needs first. एक नीड को पहचान लेंगे आप गेस्ट की, तो वो गेस्ट को आप हमेशा अच्छे से सर्विस कर पाएंगे. तो एक गेस्ट की जो नीड्स हैं वो कई बार बोलता है, कई बार नहीं बोलता है. So we should try to read between the lines for special attention. कभी कभार हम जब बात करते हैं गेस्ट को, कभी कभार बोलता है कि यार मुझे बिना गर्म दूध पिए नींद नहीं आती है, या फिर किताबें पढ़े बिना नींद नहीं आती है. ऐसा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रोवाइडिंग सम बुक्स टू द गेस्ट, और आस्किंग हिम फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द नाइट, और समथिंग स्पेशल, प्रोवाइडिंग समथिंग आउट ऑफ आपका बॉक्स हो सकते हैं उसके बारे में. And communicate those needs to the co-worker and chef. सबको मालूम होना चाहिए कि वो गेस्ट कैसा है, क्या उसकी नीड्स है, स्पेशल अटेंशन में देना है कि नहीं देना है. चेक फॉर डिलीवरी, चेक एंड डिलीवर सर्विस. आपको जो सर्विस दी गई है उसके बारे में चेक करिए, एंड टेक द फीडबैक. फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक एक ऐसी चीज है जहां पे आप पता चलता है कि वो सर्विस अच्छी गई कि नहीं गई, गेस्ट ने लाइक किया कि नहीं किया. जब भी हम बात करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट का बात कर रहे हैं फूड के बारे में, कैसे पूछा कि कैसा लगा खाना से, डिड यू एंजॉय द फूड, गेस्ट बोला नहीं, ठीक ठाक था खाना. उससे अब हम आगे पूछ सकते हैं कि क्या खाने में प्रॉब्लम आई आपको, या क्या दिक्कत आई खाने में, या क्या पसंद नहीं आया खाने में. We can always ask those things. तो फीडबैक में हमें समझ में आता है कैसे खाना लाइक किया कि नहीं किया, या फीडबैक में समझ में आता है कि वो सर्विस कैसे लाइक की कि नहीं की. वी कैन इम्प्रूव हम जब करते हैं, जब भी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं. जब हैंडलिंग कंप्लेंट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी. क्योंकि कंप्लेंट हो रही है, पहले तो होनी ही चाहिए कंप्लेंट कहीं भी. अगर होती है कोई कंप्लेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द गेस्ट इज कंप्लेंट, तो लिसन टू हिम. लिसनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंप्लेंट हैंडलिंग करने के लिए.
उसको बोलने दीजिए, जब वो बोल देंगे तो उनका सारा गुस्सा पहले निकल जाएगा। फिर आस्क पोलाइटली व्हाट ही वांट्स एग्जैक्टली, apologize for any kind of mistake, offer solutions, if you can provide any kind of solution कि ऐसा अगर कुछ खाने में प्रॉब्लम है, you can replace it, you can get something new. If you have some solution, you can provide a solution. Ask open-ended questions. Open-ended question मतलब कि सर खाने में क्या प्रॉब्लम है, तो आपको क्या चाहिए उसके अंदर, क्या हम सुधार सकते हैं इसके अंदर, तो पोलाइटली हम पूछ सकते हैं उनसे, गेस्ट से भी। फिक्स द प्रॉब्लम एंड देन फॉलो अप। जब आपने प्रॉब्लम फिक्स कर दी है, उसका एक फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। The guest satisfaction हुआ कि नहीं हुआ, guest was satisfied or not, if he is not satisfied yet, what else we can do for him, तो ये follow up लेना बहुत जरूरी है, because these small things can change and can be a game changer for us. हमें guest को retain करना होता है आज के दिन में, तो ये सब चीजें करके हम guest को retain कर सकते हैं। So please listen to the guest carefully, open-ended question पूछिए, think, ask politely. If you have solutions, provide or offer the solutions to him, fix the problem and follow. This is all part of handling complaints. आजकल ये शेफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कैसे हम हैंडल करते हैं। So now we are moving to next part of our session. You can see this cartoon, which is I think based on a very Stone Age era, where a person has just invented a wheel out of stone, and he's showing the wheel. वो wheel को show कर रहा है अपने बाकी सब साथियों के पीछे। Look what I have invented. तो एक बोलता है what use is it? कोई कुछ और सोच रहा है, कुछ और सोच रहा है। इस समय क्या मिलता है? You might get negative reviews. You might be surrounded with negative people, but never hesitate to share your views. It might change the world for you, I mean even for others. अगर वो बंदा दूसरे बंदे की बात सुनकर रुक जाता वहां पर, अगर स्टोन को इन्वेंट या व्हील को इन्वेंट नहीं करता, तो आज हमें शायद हो सकता है व्हील ना मिलता। तो उसने हेजिटेट नहीं किया, तभी वो आगे बढ़ा। बाकी लोगों ने भी उसके नए नए यूज निकालने शुरू किए, तभी वो और अच्छे से यूज हुआ। तो one thing we take from this cartoon is never hesitate to share your views. Whenever we are talking about improving our service quality, जब हम फीडबैक लेते हैं from the guests, share it with your colleagues. अगर बैड फीडबैक है, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए जरूर, कोई कहाँ गलती हुई हमसे उसको करेक्ट करना है। But if you have some ideas, to never hesitate. Do not hesitate to share new ideas with your colleagues and look for opportunities to improve the service. कहीं भी आपको लगता है कि हम सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको शेयर करेंगे आइडियाज को, और try to improve those where we can improve the services for the guest. इससे क्या होगा, आपका भी रुतबा बढ़ेगा, आपका व्यूज, आप अगर लोगों को पसंद आते हैं तो यू ऑल्सो गेट, लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अपने योगदान दिया है इसमें, और जरूरी है, ये जरूरी भी है हमारे लिए। एक और कार्टून हम देख रहे हैं, इसमें एक और स्केच देख रहे हैं टीम वर्क पे। टू डिफरेंट टीम्स वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस कैन नेवर अचीव अ कॉमन गोल। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो अलग टीमें अलग डायरेक्शन सारी थी बनाते हुए रेल्स, और क्या हालत हुई। इससे समझ में क्या आता है, हमें इससे ये समझ में आता है कि दो अलग टीमें अगर अलग डायरेक्शंस में काम कर रही हैं तो दे कैन नेवर अचीव कॉमन गोल। हमारा कॉमन गोल बेसिकली होटल में क्या होता है, गेस्ट सेटिस्फैक्शन है। तो अगर हम अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग टीम बंदे काम कर रहे हैं, आपस में कोई कोलैबोरेशन कोई नहीं है, तो गेस्ट सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, टीम वर्क नहीं है। जब हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever we are talking about hospitality, basically hospitality is all about teamwork. What is teamwork? It is a process of work
collaboratively with a group of people in order to achieve a goal. Teamwork is often a crucial part of hospitality, as it is often necessary for colleagues to work well together, trying their best in any circumstances to delight the guest. हॉस्पिटैलिटी टीम वर्क है, पूरा हॉस्पिटैलिटी टीम वर्क है. हम होटल्स में देखते हैं कि गेस्ट एंटर कर रहा है, वहां पे दरबान जी खड़े हैं, हाथ जोड़ के उन्होंने वेलकम किया, फिर वो फ्रंट ऑफिस ले गए, वहां पे टीम वर्क है. फ्रंट ऑफिस रूम प्रोवाइड किया, अगर रूम साफ नहीं होगा, हाउसकीपिंग ने रूम साफ नहीं किया, रूम मिलेंगे नहीं, वहां पे टीम वर्क होगा. रूम गेस्ट रूम में गया, वहां पे फूड ऑर्डर किया, सर्विस स्टाफ खाना ले गया, वहां पे टीम वर्क है, किचन और सर्विस. every point at होटल में हम टीम वर्क देखते हैं. For a team to work, important थिंग है कि जब हम वर्क टीम वर्क की बात करते हैं, I feel that we need a core of people who are professionals. प्रोफेशनल मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे, प्रोफेशनल मतलब जो कि टीम वर्क को समझते हैं, प्रेशर में काम करना जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कैसे हम एक टीम को संभाल सकते हैं, क्योंकि एक टीम में जरूरी है, ये हमने देखा है कि कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, टेम्पर हाई होते हैं, मगर इन सबको पीछे छोड़ के हम कैसे आगे बढ़ सकें, दैट इज अबाउट टीम वर्क. तो दोज पीपल हु कैन मतलब फॉरगेट आर्ग्यूमेंट्स, हु कैन फॉरगेट टेम्पर, दोज पीपल हु कैन वर्क अंडर प्रेशर और ऑल प्रोफेशनल्स. जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा बस बंदा ही प्रोफेशनल होता है. टीम में काम करने के लिए यू शुड बी पर्सन हु कैन वर्क इन प्रेशर, जो कि आगे बढ़ सके, कोई भी आर्गुमेंट को छोड़ के पीछे. आपस में बात करनी है, ऐसा नहीं कि अगर आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीम कि हम बोले टीम के अंदर कि ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, वो उसका काम है. हॉस्पिटैलिटी मतलब है इट इज एवरीबॉडीज जॉब. ऐसा कोई ना हो कि इट इज नॉट माय जॉब, इट इज एक्चुअली एवरीबॉडीज जॉब. टीम मेंबर मस्ट बी अलाउड, तो जहां भी स्ट्रॉन्ग है उसको वहां पे फंक्शन करने के लिए, और जहां भी टीम मेंबर्स वीक है उसको हम हेल्प कर सकते हैं. बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इज नॉट एवरीबॉडीज जॉब इन अ होटल, तो दैट इज टीम वर्क. Now coming to the last segment for the session, we are talking about safe and honorable tourism. मैं स्टार्टिंग में बात की थी सेफ्टी गेस्ट की, ट्रैवलर्स की. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the year 2002 came up with national tourism policy and outlined 7 pillars in tourism. Safe and honorable tourism जो होता है बेसिकली एक पार्ट है टूरिज्म पॉलिसी का, जो कि एम रखता है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए और टूरिज्म की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो होता है उनको स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल के बनाने के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म पॉलिसी इन इंडिया. हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर किचिंग पीपल, फॉर एवरीबॉडी इट इज इंपॉर्टेंट, सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म. तो गवर्नमेंट इंडिया ने जो 2002 में नेशनल पॉलिसी लाया है टूरिज्म पे, दे आउटलाइन 7 पिलर्स जो बाद में ऐड होते रहेंगे उसके अंदर. Now we have 7 pillars of tourism. So that I have made this graphic for you. 7 pillars of tourism. The first one is स्वागत मतलब वेलकम. सूचना मतलब इंफॉर्मेशन. Then we have सुविधा मतलब फैसिलिटेशन. We have सुरक्षा meaning safety. सहयोग मतलब कोऑपरेशन. संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. एंड लास्ट इज सफाई, दैट इज क्लीनलीनेस. तो these are 7 basic pillars of Indian tourism industry, जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को हॉस्पिटैलिटी को सपोर्ट करते हैं. और ये हमें अपने हमेशा दिमाग में रखना चाहिए. These 7 principles, the 7 pillars of hospitality and tourism, जिस पर बेस्ड है हमारा सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म. जब हम बात करते हैं सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म की, तो
इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म के, गवर्नमेंट ने आउटलाइन किए हैं ये, दैट इज टू encourage responsible tourism and with dignity and safety of guests and locals. जब भी हम काम करेंगे हम अपने लोगों की, गेस्ट की और लोकल ट्राइब्स की डिग्निटी और सेफ्टी को ध्यान रख के करेंगे एंड वी विल डिस्करेज एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हम कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, जानबूझ के हम किसी को एक्सप्लॉयट करें, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है. Discourage any type of sexual tourism, prostitution, any form of assault or molestation in tourism, and safeguard the safety of people, especially of women and children. मतलब हम किसी टाइप के गलत कार्यों में मदद नहीं करेंगे किसी की. हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इनसे दूर रहेगा. वी विल ट्राई टू सेफगार्ड द बेसिक सेफ्टी. हम देखेंगे वुमेन की, चिल्ड्रन की और पीपल जो बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी सेफगार्ड करेंगे सेफ्टी को, स्पेशली वुमेन चिल्ड्रन की सेफ्टी. एंड वी विल prevent any kind of activities like drug use, incorrect information, cultural and social intolerance. ये जो गलत चीजें हैं हम इनको डिस्करेज करेंगे अपने टूरिज्म में और होटल्स में, बिकॉज दे आर वल्नरेबल टू क्राइम. बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हमें सेफगार्ड करने अपने टूरिस्ट को, गेस्ट को, लोकल ट्राइब्स को, अपने आप को, और हमें डिग्निटी से काम करना है. और एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हमें डिस्करेज करना है. एनी काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स टूरिज्म, इन सबको डिस्करेज करना है. वी विल डिस्करेज एनी काइंड ऑफ ड्रग यूज, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. ओके, सो दैट दोज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ safe and honorable tourism, and this is a very major part of our spirit of hospitality. With that, we are coming to the end of the session now. Again, I would like to show you the 7 pillars: Swagat, Sushta, Suvidha, Suraksha, Sahyog, Samrachna and Safai. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम देखेंगे तो ये सब हमारे होटल में दिए जाते हैं. हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं गेस्ट को, इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है सब जगह की, फैसिलिटेट करते हैं गेस्ट की स्टे को, हम सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं गेस्ट को, वी कोऑपरेट विद इन आवरसेल्व्स एंड विद द गेस्ट. हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम डेवलप करते हैं, एंड वी प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ फूड एंड इवन सेफ रूम्स एंड सेफ accommodations. So this is all part of our tourism industry. Any questions regarding today's session, then definitely ask me. You can put in the chat box if you have any question regarding anything in the for today's session, because this is the last session and I wanted to end this program on a high note with all the aspects of spirit of hospitality. So yes, 7 pillars are the basic of hospitality and tourism, and so has become the ending and the, for our session now. If you have any questions regarding anything, you can ask me. Please पूछिएगा आपके कोई question doubt है. I can provide my email ID also if you want to ask me on the email ID. Any questions you want to ask me right now, please go ahead. If you want, you can see our videos, our postings. आप हमारे साथ हमें फॉलो करिए. FHRI IHM फेसबुक है हमारे पास, ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए. यू कैन फॉलो अस ऑन लिंक्डइन. FHRI IHM का हमारे पास चैनल है यूट्यूब पे, गो टू दैट चैनल, सब्सक्राइब अस. हम उस पर वीडियो डालते रहते हैं. कई बार ये जो रिकॉर्डिंग सारी हम उस पर डाल रहे हैं. इफ यू वांट टू सी दिस रिकॉर्डिंग अगेन, you can go to this channel, and with that I would like to end this session now and hope that हम कहीं आगे फ्यूचर में कहीं आपसे बात हो, आपसे मिले, फिर से कई नए प्रोग्राम्स में मिले हम. Until that, keep safe, अपना हार्ट बढ़ाइए. टूरिज्म को, हॉस्पिटैलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं हम सब. हम थोड़े से बैड फेज में इस टाइम, हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बैड फेज में, बट वी विल सपोर्ट
हम अपना योगदान देंगे, हम भी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपना, और अगेन वी विल बाउंस बैक एंड वी विल बी अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री जो कि 10% जीडीपी को सपोर्ट करती है, एंड वी विल बी बैक ऑन द ट्रैक. टिल देन, thank you everybody for being the part of this program, this session. Hope कहीं हम आगे जो प्रोग्राम करते हैं आप उनके भी पार्ट रहेंगे, and we will try to connect with you. You can also connect with us on all the social media platforms. Thank you everybody. Hope people are safe and remain safe in the future. Thank you. Kindly put your names and email ID in the chat box, because we have to disperse the certificates in this week, and the next coming week we will be dispersing all the certificates. So it is required that you can put your name and email ID in the chat box so that you can start dispersing the certificates. You will be getting the certificates via mail. We will be sending this mails. We will be starting sending this mails this week after the last session. Tomorrow evening is the last session. So after that, we will be sending. So Saturday, Sunday, or Monday, or the next week, we will be sending all the mails with the certificates for the people who have joined us. Thank you, everybody, and hope for the best.